Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Jersey, Radio Zindagi being America's biggest and first South Asian radio network from East Coast to West Coast. That is New York, New Jersey, Connecticut, DC, Maryland, Virginia, and then up in the Bay Area, San Francisco. That's East Coast to West Coast. And here on the East Coast, we are live on 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, 13:10 a.m. up in Parsippany, Morris County, and 96.7 FM in the Edison area. Streaming live on RadioZindagi.com 24/7. And of course, our Radio Zindagi app for iOS and Android. Our Facebook page is Radio Zindagi Tri-State. Aaj Guruwar hai, and the time in the studio is 3:32. So you know it's Divine Vastu time every Thursday between 3:30 and 4. We are joined by Vastu Shastra expert Dr. Rewa Kumar of World of Divine Vastu, person with over 30 years of experience when it comes to Vastu knowledge, experience, and of course Vastu ki jo knowledge inke paas hai, samajh jo inke paas hai, has been helping thousands of individuals throughout the world, and she is live on Radio Zindagi with us. Jai Mata Di, Namaste, welcome to the show. Didi, kaise ho aap? जय माता दी संजीव, नमस्कार। और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छी हूँ और यही उम्मीद रखती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स, लिसनर्स भी बहुत 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 अच्छे होंगे। जी, मैं भी ये मानता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज एवरी वीक जिस तरह से आप वास्तु हमें समझाते हो, हम सबको समझाते हो, वास्तु का नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हो और टिप्स देते हो, तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि काफ़ी लोगों को उससे काफ़ी हेल्प होती रहेगी और होती भी है. And once again, during this show, listeners, you can go to Radio Zingi's Facebook page, which is Radio Zingi Tri-State, and watch us live. And any question you have, you can definitely put on a board, or you can contact Rewa ji after the show at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. The importance of this show, Divine Vastu with Dr. Rewa Kumar, is that to educate you, to inform you about Vastu, and also to make you understand how important is the Vastu for your personal life as well as for your professional life. यानी कि घर के लिए और अपने बिजनेस प्लेस के लिए वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझाना आपको बहुत जरूरी होता है. एंड देन वास्तु, करेक्ट वास्तु with the full remedies can definitely help you to get name, fame, success, and prosperity in life. Every week, Rewaji picks a different subject and that educates us and guides us. Rewaji, as we are still in the summer, and you know, in the summertime, एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है, especially East Coast वालों के लिए, कि in the backyard में एक swimming pool हो, and then you relax, on the side by the swimming pool and have a good time, and then weather जब बहुत गर्म होता है, hot होता है, तो you jump in the swimming pool and try to stay cool under the water. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि there are people who like to have swimming pool in their backyards, but they may not know as per Vastu how important that is. तो अगर स्विमिंग पूल नहीं है और बनाना है, तो वास्तु के लिए करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, और इवन फॉर अंडरग्राउंड टैंक और स्विमिंग पूल, उनको क्या समझना चाहिए एज फार एज द करेक्ट पोजीशन फॉर वास्तु? जी संजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वेदर है, समर वेदर में है, और ये नहीं कि सिर्फ ईस्ट कोस्ट में ही, मैं देखूं all around, even in California also, everybody is having craze कि उनका घर पे अगर उनको जगह मिले तो वो पर्सनलाइज करना चाहते हैं स्विमिंग पूल को.
स्विमिंग पूल के साथ साथ में अगर वो देखें तो हर कंट्री में आज के समय में एक जरूरी हो गया है। ये बात अलग है कि लोग स्पा चले जाते हैं, दैट समथिंग डिफरेंट, लेकिन अगर हम घर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ घर के साथ साथ स्विमिंग पूल की, मैं कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो मोटल से रिलेटेड हैं, और मोटल्स में भी स्विमिंग पूल तो होता ही होता है, होटल्स में भी होता है स्विमिंग पूल। तो आपने बहुत ही अच्छा आज सवाल किया, क्योंकि ये स्विमिंग पूल का जो एक सवाल है, या अगर हम कहते हैं कि हम लोग अंडर अर्थ की जमीन के नीचे अगर हम कोई भी डिगिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो सिर्फ हमारा रेजिडेंस पर्पज से ही रिलेटेड नहीं होता, वो हमारा कमर्शियल भी है। बहुत क्लाइंट्स देखती हूँ कि जैसे अब हम पहले स्विमिंग पूल के ऊपर में बात करते हैं कि अगर हमारा स्विमिंग पूल घर के अंदर है या हमारा बिजनेस प्लेस में, चाहे मोटल्स में है या कहीं पे भी होटल्स में है, इनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है, इट इज नथिंग इज डिफरेंस। यानी कि साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में कभी भी स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, बिकॉज साइंटिफिकली our earth is inclined to northeast, I always say. When it is elevated to southwest, and that is earth element, अगर हम वो dig करेंगे तो वो हमारा सब कुछ ड्रेन कर जाएगा। स्विमिंग पूल की सही जगह है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। अगर हमारा, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, यहाँ पर अगर स्विमिंग पूल होता है तो उस घर में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, गुड हेल्थ, वेल्थ, फेम, नेम। और अगर यही हमारा बिजनेस प्लेस में होगा तो वहां पर भी बहुत हमारा बिजनेस ग्रो करता है। और इसको मैंने रेक्टिफाई भी किया है जहां जहां ये गलत डायरेक्शन में हुआ है, चाहे वो रेजिडेंस में है, फ्लोरिडा में भी है, पेंसिल्वेनिया में भी मेरे क्लाइंट्स थे जिनके मोटल्स थे, और उनका स्विमिंग पूल जब उनका गलत डायरेक्शन में था, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, एंड दोज प्रॉब्लम्स वर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स कि आप मानेंगे नहीं, क्योंकि वो स्विमिंग पूल उनका रॉन्ग डायरेक्शन में था, वो साउथ ईस्ट में से जा रहा था। जब साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल होगा तो वो आपको फाइनेंशियली तो लॉसेस देगा ही देगा, लेकिन आपको कोई ना कोई लिटिगेशन लेकर आ जाता था। तो मैं एक छोटी सी केस हिस्ट्री भी डिस्कस करना चाहूंगी। तो मैंने जब वहां पे पेंसिल्वेनिया में मोटल पे विजिट किया, देखा कि वो साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब लिटिगेशन देखिए, कोई ऑनर का कोई फॉल्ट नहीं है, एम्प्लॉयज का कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी कोई ना कोई लिटिगेशन आ गई। और वो लिटिगेशन क्या, कि जो गेस्ट रहने के लिए आए थे, वो गेस्ट में से एक गेस्ट कोई था, ही वाज द और एंड शी द बोथ वर इन्वॉल्व विद ड्रग्स। और वो उस होटल में जब वो मोटल में रह रहे थे, तो नेचुरली अगर आप मोटल में आए हैं, आपके पास आईडी है, सब कुछ है, तो आप कैसे कि कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो किसी ड्रग्स या किसी चक्कर में होंगे। तो आई जस्ट वांट टू से कि वो इन्वॉल्व थे, और उनकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट हुआ, उसका जो डिफेक्ट स्विमिंग पूल का जो डिफेक्ट था, उसका इफेक्ट ऑनर के ऊपर भी आया और उनके ऊपर में काफी ये स्ट्रेस आया। और जब मैंने विजिट किया, देखते ही मैंने बताया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल रॉन्ग डायरेक्शन में है। Along with that, they had an accident also, और जबकि कहीं पे भी कोई ऑनर का फॉल्ट नहीं था, फिर भी अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड वहां प्रॉब्लम्स, लिटिगेशंस आए। अब उसमें ये तो है नहीं कि हम मोटल को बंद कर देंगे या हम छोड़ के चले जाएंगे। And I explained them how we can rectify that defect. उसको डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए I took help from pyramidology, कि वहां पे let the swimming pool be there, लेकिन उसकी शिफ्ट कर दी हमने एनर्जी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो वाटर एलिमेंट था। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, अगर कोई भी स्विमिंग नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में होगा, वो आपको बहुत फायदा देगा, लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट में होगा तो वो आपको प्रॉब्लम देता है। अब मैंने ये जैसे कि कहा कि साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है, उसको हम डिग नहीं कर सकते। अगर हम डिग करेंगे तो वो बॉटम मींस कि वो एक हमारा जो स्टेबिलिटी, क्योंकि दैट इज द एंड ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कोई चाहे वो घर है चाहे वो बिजनेस है, अगर भगवान नहीं करे किसी के पांव कट जाए तो कैसे वो स्टैंड करेगा,
कैसे वो ग्रो करेगा। तो उसी तरह से साउथ वेस्ट हर घर का, हर बिजनेस प्लेस का एक अर्थ एलिमेंट है, एंड दैट इज द बैंक ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट इज द एंड ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड दैट इज द बॉटम ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज द इमेज ऑफ वास्तु पुरुष, इफ यू सी the head is towards northeast and the feet is towards southwest, तो तभी साउथ वेस्ट को हम कभी भी डिग नहीं कर सकते। लेकिन स्विमिंग पूल के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छा है। यहां तक मैं कहूं कि स्विमिंग पूल ही नहीं है, बहुत गैस स्टेशन वाले हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, इवन कि गैस स्टेशन में भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसको बोरिंग करके नीचे टैंक बनाया जाता है, और अगर वही उनका स्टोरेज का, अगर उसको हम साउथ वेस्ट में बोरिंग करेंगे तो वो बिजनेस को नुकसान देता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर हमको कोई भी डिग करना है, कुछ भी करना है, लेट इट बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, लेकिन साउथ वेस्ट में आप कहीं भी, चाहे वो आपका गैस स्टेशन की आपको बोरिंग के लिए आपको रखना हो, टैंक बनाना हो, या आपको स्विमिंग पूल बनाना हो, साउथ वेस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट इज टोटली नो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। पर इसके साथ में मैं एक चीज और भी एक्सप्लेन जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय व्यूअर्स हमारे ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, कि जैसे कि अब इंडिया में देखो, इंडिया में कई बार होता है कि वाटर टैंक होता है स्टोरेज के लिए, वो लोग अपने घरों के ऊपर लगाते हैं, टेरेस पे रखते हैं। वहां के लिए संजीव, हमारे को जो वाटर टैंक है जो हमको टेरेस पे रखना है, वो कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट को एलिवेट कर देगा। अगर आप उसको बोरिंग करना चाहते हैं, अगर आप उसको जमीन में रखना चाहते हैं, वो वाटर टैंक आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस वाटर टैंक को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। उसकी सही जगह आती है साउथ वेस्ट में। अगर आपको टेरेस में आपको वाटर टैंक रखना है, स्टोरेज के लिए लगाना है, तब आप उसको नॉर्थ में नहीं रख के साउथ वेस्ट में लगाइए, क्योंकि एक तो वाटर टैंक होगा, एक हैवी होगा, और वो हमारे को एलिवेशन देने से वो हमारे को ग्रोथ भी देगा। लेकिन स्विमिंग पूल के लिए इट्स एडवाइस टू एवरीबडी, अगर हमारे व्यूअर्स लिसनर सुन रहे हैं कि अगर उनका स्विमिंग पूल नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में है, तो आपको वो हर तरफ से ग्रोथ देगा। लेकिन अगर किसी वजह से गलत डायरेक्शन में है, तो स्टिल डोंट गेट पैनिक। Yes, we can rectify it easily by shifting energy from one direction to another direction, and the right direction is north. And absolutely, and that is what the beauty of the वास्तु is। और जिस तरह से आप सजेशन देते हो, जिस तरह से रेमेडीज ऑफर करते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि काफी सारे लोगों को बहुत बहुत हेल्प हुई है। You have saved, I would say, many families and individuals from from any accidents or litigation or something like that by giving them a right direction, right suggestion ahead of the time। अगर वो आपके पास बाद में आते हैं, लिसन, अगर घर खरीद लिया हो, मोटेल खरीद ली हो रेवा जी, और अगर वहीं पे स्विमिंग पूल हो गलत डायरेक्शन में, तो nothing can be done। लेकिन if they contact you after purchasing those properties and when you offer them remedies and suggestions by shifting energies, negative energies into positive energies from one direction to another direction, it is what beauty of the vastu is, without any renovation, without remodeling। ऐसा नहीं है कि हमें स्विमिंग पूल वहीं पे completely बंद कर देना है, उसको तोड़ देना है और जाके दूसरी डायरेक्शन में ओपन करना है। That is not the case here। और यही बात मैं लिसनर्स को समझाना चाहता हूँ कि it might be a myth माने कि अगर आपको लगता है कि वास्तु मीन्स रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग एवरीथिंग, that is not the case। It can all be done through remedies, which are these special remedies and very effective remedies offered by Dr. Reva Kumar of worldofdivinevastu.com, and this is what makes a difference। अब यहाँ पे दीदी मुझे आपसे एक प्रश्न है। आपने कहा कि वाटर टैंक अगर नॉर्थ में हो तो वो ठीक नहीं है, हालांकि स्विमिंग पूल अगर नॉर्थ में हो तो ठीक है, जब आपने इस तरह से समझाया। जी नहीं, वाटर टैंक मीन्स कि अगर आप ओपन में टेरेस पे रखते हैं, हाँ, अगर आपको वाटर टैंक को जमीन में लगाना है, देन नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। लेकिन कई इंडिया की कंट्री में आप देखिए कि वाटर टैंक को वो टेरेस के पे लगा देते हैं, ऊपर करके रखते हैं जी। कई प्रॉपर्टीज में है, वो जमीन में नहीं लगाना चाहते, क्योंकि कहीं पे चाहते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअली वाटर टैंक होना चाहिए जहां से हमारे घर में सप्लाई आ जाए, या वो अलोंग विद दैट
क्योंकि बहुत ज्यादा पानी का प्रॉब्लम होता है इंडिया में, तो वो लोग वाटर टैंक को उठाकर एक जस्ट अपने घर के टेरेस पे रख देते हैं। वो वाटर टैंक अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि उसने नॉर्थ ईस्ट को हैवी कर दिया। वहां पर हम वाटर टैंक को अगर साउथ वेस्ट में लगाते हैं, इट मीन साउथ वेस्ट वी आर गेटिंग मोर एलिवेशन इन साउथ वेस्ट। लेकिन जमीन में अगर हमको कभी भी लगाना है, जिसको हम कहते हैं कि हमको बोरिंग करनी है, चाहे आपको सबमर्सिबल पंप लगाना है, चाहे आपको वाटर टैंक रखना है, वाटर से रिलेटेड या स्विमिंग पूल है, इट हैज टू बी इन नॉर्थ। चाहे वो आपका मोटल है, चाहे वो आपका होटल है, चाहे आपका घर है। इसी तरह से बिजनेस प्लेस में गैस स्टेशन है, गैस स्टेशन के बीच में भी तो हमारे को नीचे टैंक लगाना पड़ता है गैस की स्टोरेज के लिए। तो अगर वहां पर अगर हमारा गैस का स्टोरेज अगर हम साउथ वेस्ट में टैंक नीचे रखेंगे तो वो हमारा बिजनेस को नुकसान देगा। उसके लिए है कि लेट इट बी इन नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ की तरफ रखें या ईस्ट की तरफ रखें, ताकि वो जो नीचे से हमारे को जो एनर्जी है उससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। बिकॉज ये जो वाटर गैस टैंक की बात करी, देर आर मैनी पीपल फ्रॉम आवर कम्युनिटी, दे ओन गैस स्टेशंस थ्रू आउट द नेशन। आप ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट देख लो, देर आर मैनी इंडिविजुअल्स हु ओन द गैस स्टेशन। उनके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। एंड अगर इफ यू परचेज द प्रॉपर्टी विदाउट नोइंग कि ये गलत डायरेक्शन में है, it can all be solved through remedies, and Reva ji does offer the remedy, and you can contact her after the show at 510-868-3338. That's her direct number. Tell her that you heard it on Radio Zindagi, 510-868-3338. And not only for this question, swimming pool ya to gas tank, not only for that question, but any Vastu related question that you have, and you need to have a private consultation or any guidance suggestion, you can give her a call at 510-868-3338 or visit our website, which is worldofdivinevastu.com. That's worldofdivinevastu.com. अच्छा रेवा जी, ये जो स्विमिंग पूल की जो बात हो गई, अब ये रेमेडीज होती है, अब ये रेमेडीज आपको एक बार लगानी होती है या टू मेक श्योर द एनर्जी, the remedies also needs to how do I say this, needs to be maintained every 3 months, every 6 months or every year, just to make sure that it is giving you the result? बिल्कुल संजीव जी, एक्चुअली इसको हम एक ही बार में रेक्टिफाई कर देते हैं। जब हम इसको एनर्जी को रेक्टिफाई कर देते हैं, उसके बाद में डेफिनेटली, बिकॉज द वंस आई वर्क फॉर एनी वन ऑफ माय एनी क्लाइंट, सो दे ऑलवेज बिकम द पार्ट ऑफ माय प्रेयर्स। तो 1 साल के लिए मैं उनको बकायदा उनके साथ में कनेक्शन में रहती हूँ कि इफ दे वांट एनीथिंग, फॉर गॉड फॉरबिड, अगर कहीं पे उनको लगता है कि कहीं खुद नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, तो मैं उसी समय उसको देखने की कोशिश करती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने किसी को एडिशन कर दिया हो। अगर आप यू कैन वर्क इट आउट, फिर हमारे को उसको दोबारा रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे आप देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी में आपने कुछ और ऐड किया है, तो फिर जरूर आपको उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कुछ चीजें हम गलत लगा देते हैं और हमें पता नहीं चलता, तो उससे जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो नेगेटिविटी में बदलती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से व्यूअर्स बताना चाहती हूँ। सी वी डू योगा, हम योगा क्यों करते हैं? टू कीप आवरसेल्फ फिट, because our body is made of 5 elements of nature, so we have to balance that energy. आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ही आप योगा करते हैं, चाहे आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। और एक बार अगर आप योगा कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी ब्रेक करते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने आप में कुछ ना कुछ किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं। सेम अगर हमने वास्तु भी 5 एलिमेंट से जुड़ा है, जैसे आपकी बॉडी को योगा की जरूरत है, उसी तरह आपकी ड्वेलिंग को भी योगा की जरूरत है, क्योंकि उसकी एनर्जी आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ में मिलकर उस एनर्जी को बैलेंस करती है। तो डेफिनेटली वहां मैं जरूर चाहती हूँ कि एटलीस्ट वंस अ ईयर जरूर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से दोबारा एडवाइस लें, ताकि उस एनर्जी को देख के फील कर सकें कि क्या वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की कहीं ज्यादा तो नहीं है, क्या वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का कहीं क्वेश्चन तो नहीं है, या कहीं पे कोई जियोपैथी स्ट्रेस तो नहीं फील कर रहा। वी हैव टू बैलेंस इट। तो वंस अ ईयर तो एटलीस्ट आपने प्रॉपर्टी रेक्टिफाई करवा भी लिया, उसके बावजूद भी आप वंस अ ईयर आप जरूर किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से बात करके देखने की जरूर कोशिश करें।
और आप उसके अलावा आप ये भी देखिए कि क्या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि नहीं, या कहीं आप कुछ वैसे ही रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो भी आप उनसे गाइडलाइंस लीजिए कि अगर आप रेनोवेट कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन को उससे करें या किस डायरेक्शन को टच नहीं करें। Very well said. Very, very well said. And the viewers and the listeners, of course, I hope that you made a note of it. जो रेवा जी ने समझाया स्विमिंग पूल को लेके, वाटर टैंक को लेके, and as well as गैस टैंक को लेके जो समझाया, very interesting and very helpful, suggestion related to वास्तु in today's show. Now, रेवा जी, आप हमेशा हमें कोई ना कोई टिप देते हो, and जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, तो फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, फेस्टिवल का मीनिंग क्या होता है, और फेस्टिवल में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है. आई थिंक दैट ऑल्सो makes you one unique individual, because ऐसी कोई टिप देता है नहीं, but you who believe in a celebration of festival, who believe in a spirituality and having knowledge of vastu, that combines everything in you, and that's what makes it unique. तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि गणेश फेस्टिवल अभी शुरू होने वाले, गणपति बाबा सबके घर में गणपति बापा आएंगे और रहेंगे, और ये 10 दिन का जो फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हमें कोई ऐसी टिप दो कि घर में गणेश जी का उनको स्वागत करना हो, उनको लाना हो, सेलिब्रेशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. बिल्कुल संजीव जी, सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज यूजुअल वासुदेव कुटुंबकम. आप सब, सारा संसार हमारा परिवार है. आप सबको हमारी तरफ से, रेडियो जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से बापा के आने की गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो. ऑफ कोर्स मैं जरूर बताना चाहती हूँ इस गणेश चतुर्थी की 2 चीजें, कि कल का और परसों में कुछ लोग कल लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग परसों लेके आ रहे हैं, और दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस दिन भी बप्पा घर पे आए वही दिन हमारे लिए अच्छा है. आप बप्पा को अगर घर पे ला रहे हैं तो आप उनको बहुत ही अच्छे दिल से, बिल्कुल खुशियों के साथ आप उनको लेकर आइए. मन में ये मत रखिए कि कोविड-19 है, फॉरगेट कोविड-19, नथिंग इज देयर नाउ. नाउ बप्पा इज कमिंग टू योर प्लेस. वो आपके दुख हरता है, आपकी परेशानियों को सब हर लेते हैं. आप जब उनको घर में लेकर आ रहे हैं तो लाते वक्त उनको एक पीले कपड़े से, या कल पिंक कलर का, अगर कल फ्राइडे को लेकर आ रहे हैं तो उन्हें पिंक कलर के कपड़े से ढक के घर पे लेकर आइए. उनका स्थान है बप्पा का आपके घर में. हो सकता है आपके घर में, सबके घर में पूजा की जगह ना हो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेकिन आप जो बप्पा को चतुर्थी पर लेकर आते हैं उनकी जगह है आपका. चाहे लिविंग रूम में आप जगह बनाइए, चाहे आप अपना किसी भी कमरे के पर्टिकुलर उसके नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में आप बप्पा को बिठाइए. बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद शिवाजी, एंड शिवाजी फादर ऑफ गणेशा जी. अगर आप वैसे डेकोर के लिए लेकर आते हैं कि जैसे कि हम गणपति चतुर्थी के अलावा गणपति जी जब लाते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लेट इट बी इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस. रीजन, बिकॉज इट सिंबल्स हैवीनेस. जब वो साउथ वेस्ट में रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट को देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद शिवा, तो शिवा जी का वहां से एनर्जी एक बाप बेटे के एक संबंध को बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है. लेकिन अगर आप जब गणेश चतुर्थी पे बापा जी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसके 10 दिन बाद हमने उनको विसर्जन करना होता है, तो आप उनको घर के नॉर्थ ईस्ट में लाके उनके विराजिए. और उनके पास में आप जैसे कि पंच तत्व होते हैं, पांचों चीजों को रखिए. वाटर एलिमेंट को, मतलब कि पानी का कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे ग्लास में रखें, किसी भी चीज में उनके पास में पानी भर के जरूर रखिए. पानी के साथ साथ में आप उनको दिया बत्ती जरूर करिएगा, क्योंकि वो फायर एलिमेंट को करता है. उनके वस्त्र को भी आप पिंक कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में लीजिए, जो फायर एलिमेंट को लेकर आएंगे. साथ ही साथ में आप उनको मीठे का भोग दे सकते हैं. सो अर्थ एलिमेंट है जिस दिए में आप उनका दिया प्रज्वलित करते हैं. बप्पा को बहुत पसंद है ग्रीन चीजें, लेकिन आप तुलसी का भोग कभी भी गणेशा जी को नहीं लगा सकते. दूब का लगाइए. दूब के साथ में जो भी ग्रीन चीजें हैं उनको जरूर भोग लगाइए. चाहे आप उनको 1.5 डे के लिए रख रहे हैं, चाहे 3 डेज के लिए, 5 डेज के लिए और 10 डेज के लिए. इससे भी इंपॉर्टेंट मैं 2 बातें जरूर शेयर करना चाहती हूँ संजीव, सभी व्यूअर्स के लिए.
एक तो गणपति जी जब भी घर लाएं, आप उनकी पीठ के पीछे जरूर स्वास्तिक का निशान लगाइए, स्वास्तिक रेड कलर के साथ में, या आप ओम लिख सकते हैं। इसका कारण यह है, जो हमारे वेदों पुराणों में भी लिखा है, क्योंकि गणपति जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। कभी भी अगर हम अपने घर की मेन एंट्रेंस रोड पे गणपति जी लगाते हैं तो बैक टू फोर्थ लगाते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ लगाते हैं, ताकि अगर हम घर से बाहर जाएं तो गणपति जी देखें, घर से अंदर, घर के अंदर आए तो उन्हें देखें। तो लेकिन जब आप गणपति जी को अपने घर पे बिठाएंगे बिठाएंगे तो उस समय उनकी पीठ के पीछे रेड पेंट के साथ में, चाहे नील पेंट ले लीजिए, रेड स्केच ले लीजिए, उनके पीछे स्वास्तिक बनाइए या ओम का निशान जरूर लगाइए। उससे भी इंपॉर्टेंट है संजीव जी, गणेश चतुर्थी जो आती है भादों के महीने में, जिसको हम बोलते हैं अगस्त सितंबर के मंथ आती है, एंड दैट इज 4th डे ऑफ दैट मंथ। खासकर उस गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखना निषेध कहा गया है। इवन कि इस चंद्रमा को भगवान कृष्ण देखा था तो उनको भी कलंक लगा था। तो इस दिन का जो चंद्रमा है उनके दर्शन नहीं करने चाहिए। और अगर कभी भी गलती से अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाए पर्टिकुलर एक टाइम पे, जैसे कि कल शाम को कैलिफोर्निया में कल बापा का आ रहे हैं, तो कल शाम को जिस टाइम चंद्रमा निकलेगा उसका पर्टिकुलर टाइम से लेके 2 घंटे का भी होता है, 3 घंटे का भी होता है, उसमें चंद्रमा देखना निषेध है। उस समय चांद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर चांद को देखो तो कोई ना कोई कलंक लगता है, कोई ना कोई परेशानी आती है। और ये भी मैं आपको बिल्कुल वो शेयर कर रही हूँ जो मेरी जिंदगी का 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड इट इज 100% ट्रू। इसमें कहीं कोई वहम या कह सकते हैं कि सुपरस्टिशियस है, इट इज नथिंग लाइक दिस। इट इज ट्रू कि अगर गणेश चतुर्थी के दिन जो भादो मास की चंद्रमा चतुर्थी होती है, अगर चंद्रमा देखें तो कोई ना कोई कलंक लगता है। और अगर किसी तरह आपको अचानक चंद्रमा नजर आ गए, क्योंकि कई बार होता है ये अचानक ही आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं, अगर नजर आए तो उसका एक ही है, आप एक छोटा सा कंकर लीजिएगा और आसमान की तरफ फेंक दीजिएगा और वासुदेव का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गणपते नमः, ये नाम लीजिए, ताकि उस परेशानी से आप कोई ऐसी आपके जीवन में परेशानी ना आए। ये सिंपल है, सुनने में हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन दिस इज ट्रू। नहीं, सुनने में बिल्कुल अजीब नहीं लगा। मैं तो ये कहता हूँ कि सुनने में भी अच्छा लगा और ये पता चला इस बात का, बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ना हो, और जिस तरह से आपने समझाया, एंड विदाउट नोइंग, जैसे मैं कहता हूँ अननोइंगली, पीपल डू लुक एट इट एंड कहते चलो चंद्रमा है, ऑस्पिशियस डे है, आज गणेश चतुर्थी है तो दर्शन करते। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं लिसनर्स को यहीं पे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये पूरा जो कुछ सुना है रेवा जी से, तो आप अपनी तरह घर पे जैसे फॉलो करेंगे, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन, और आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो अपने फैमिलीज में अपने फ्रेंड्स को भी वास्तु के बारे में समझाइए, एंड ऑल्सो गिव देम रेवाजी's contact number or ask them to visit their website worldofdivinevastu.com, or you can tell them to contact Revaji after the show at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. गणेश फेस्टिवल जो आ रहा है, गणेश जी को लेके कुछ पूछना हो या तो वास्तु से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, डू गिव her a call, and एक फोन कॉल, एक गाइडेंस, एक कंसल्टेशन से बहुत सारी तकलीफें दूर हो सकती है, और आपके जीवन में, आपके फैमिली में सबके लिए हंसी खुशी, पीस एंड देन हैप्पीनेस आ सकती है। सो डू गिव her a call after the show, 510-868-3338. रेवा जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। एक बार फिर से आपने हमें वास्तु के बारे में और नॉलेज दी, और गणेश फेस्टिवल के बारे में जिस तरह से समझाया, सबकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको भी गणपति बापा मोरिया की बहुत बहुत मुबारक। Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life.
Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.